Assalamu alaikum students. This is the part 3 of Buddhism. In this part we will study about principles and beliefs of Buddhism. Before studying in detail, we should come to know what is the Eightfold Path. The Eightfold Path is one of the Buddha's teaching. He often taught it as proposal. Test it and see if you find it true. Before studying Eightfold Path, we should recall Four Noble Truths, which we have studied in detail in part 2. Now we will recall it. The first one is suffering. Suffering is present in the birth, in the sickness, in the old age, death, decay, and there are a lot of unavoidable sufferings in our life. The example of unavoidable sufferings are, for example, being with people you don't want to be with, or not being with people you want to be with, having experiences you don't want to have, not having experiences you want to have. All these create unavoidable sufferings. Number two, the second noble truth is there is resistance to suffering. Resistance to suffering is avoidable. There are different therapies, different concepts to avoid the resistance of sufferings. Number three is there is relief from suffering. Different type of sufferings have different type of reliefs. Physical sufferings, mental sufferings, emotionally you suffer by people's attitude, behavior, or you have psychological sufferings, and there are different medicines, therapies, different researches to avoid the sufferings, to get relief from them. The path to relief from suffering is the eightfold path. According to Buddhism, they describes the eight things for practice in our life, that you can practice in over your life, and you can relieve sufferings from your life. And the eight points are right view, right intentions, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, and right mindfulness. These are the eight points which are necessary to practice in the life according to Buddhism. Step 1, clear seeing. Step 1 on the Eightfold Path, wise understanding, see things as they really are. That means clear seeing. जब हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तमाम इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, और अगर एक इंडिविजुअल अपने अंदर से इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर ले और अपनी सारी सफरिंग्स को ख़त्म कर ले, तो कलेक्टिवली हम देखें तो पूरी सोसाइटी के अंदर वो फीचर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला ये है कि चीज़ों को आप वैसे ही देखें जैसे वो हैं, जैसे आपको नज़र आ रही हैं। अपने पास से उनके रिलेशंस ना निकालें, उनके मीनिंग्स ना निकालें और उनको रिलेट ना करें। सेकंड वन है डिपेंडेंट, फिर है ओरिजिनेशन, हाउ वी एक्सपीरियंस लाइफ एंड वेयर वी ऑफन गेट स्टक, seeing things differently from what they are, senses and sense objects perceptions, feeling thinking, और फिर है कॉन्शियसनेस। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेप 1 में आती हैं कि आप अपने चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, कैसे आपको देखनी चाहिए और किस तरह से उनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। चीज़ों को वैसे ही देखें जैसे वो हैं, एज़ इट इज़ उनको परसीव करें, पॉजिटिव थिंकिंग में रहें और कॉन्शियसनेस में रहें, अनकॉन्शियसली चीज़ों को मत करें। स्टेप 2 है कि स्टेप 2 ऑन द लाइट एटफोर्ड पाथ में वाइज इंटेंशन, लेट गो ऑफ एंगर। वाइज इंटेंशन क्या होगी? क्या अक्लमंदी की बात, यानी कि
एक वाइज़ इंटेंशन है, एक बंदे के अंदर फ़ितरी तौर पर ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं और वो हमेशा ऐसा बिहेव करता है। कैसे अगर उसे गुस्सा आता है, तो वो अपने गुस्से को लेट गो कर देता है और अगर उसके अंदर ग्रीड पैदा होती है, तो वो ग्रीड को लेट गो करेगा और अगर इग्नोरेंस है, किसी चीज़ के बारे में वो इग्नोरेंट है, तो वो अपनी इग्नोरेंस को ख़त्म करेगा, अवेयरनेस पैदा करेगा अपने अंदर। दिस इज़ द स्टेप 2। स्टेप 2 इज़ द वाइज़ इंटेंशन। स्टेप 3 क्या है एट फोल्ड पाथ में? वाइज स्पीच, कि आप अच्छा, अक्लमंद, अच्छा और शाइस्ता या खूबसूरत वर्ड कैसे यूज़ करेंगे। तो बुद्धिज़्म की प्रीचिंग में है कि आप हमेशा स्पीक द ट्रुथ, सच बोले, चाहे वो जैसा भी है, लेकिन यू शुड स्पीक ट्रुथ। स्पीक विद कंपैशन, कंपैशन रखें अपने अंदर। गिव प्रेज़, अगर किसी में आपको अच्छाई खूबी नज़र आ रही है, चाहे बहुत छोटी ही है, एक काइंड जेस्चर है, आप रूम में आए हैं तो किसी ने आपको उसके साइड पे होके आपको जगह दी है, आपको प्यास लगी है, आप पानी की तरफ हाथ बढ़ाया है तो आपको किसी ने ग्लास पकड़ा दिया है। तो छोटे छोटे जो जेस्चर्स हैं उसके ऊपर भी आप दूसरों को थैंक्स करें, उसकी प्रेज़ करें, उसको एप्रिशिएट करें। उससे क्या होगा कि ये जो प्रेज़िंग एलिमेंट है, इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपके उसके साथ टर्म्स जो हैं वो बड़े पोलाइट, बड़े लवली हो जाएँगे और आप उसके करीब आ जाएँगे। स्पीक टू हेल्प, हमेशा हेल्प के लिए अपने आप को पेश करें एंड बेनिफिट अदर्स, और दूसरों को फ़ायदा दें। अपनी ज़ात से, अपने हवाले से दूसरों के साथ बेनिफिशियल हो जाएँ, उनके बेनिफिट्स में आपकी वजह से इज़ाफ़ा हो। स्टेप 4 है वाइज़ एक्शन। बी कंपैशनेट, गिव टाइम, गिफ्ट्स एंड लव, प्रोटेक्ट लाइफ। ये सारी चीज़ें वाइज एक्शन में आती हैं। जब आप दूसरों को वक्त देते हैं, जब आप कंपैशनेट हो जाते हैं, जब आप गिफ्ट्स देते हैं, आप मोहब्बत से पेश आते हैं, या आप दूसरों की ज़िंदगियों को उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो फिर आपका ये एक्शन जो है वो वाइज एक्शन में आता है। 4 1 है डोंट किल, आपने मारना नहीं, ठीक है? क्या पहले ये सॉरी, स्टेप 4 में हम स्टेप 4 की ही ये पीछे चीज़ें पढ़ रहे थे। तो उसमें एक लास्ट वन है कि आपका वाइज़ एक्शन और क्या है डिटेल में। उसके 5 एस्पेक्ट्स हैं। कौन से हैं? कि एक, आप मारेंगे नहीं। डोंट टेक व्हाट इज़ नॉट फ्रीली गिवन, जो आपको फ्री में चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप दूसरों से छीन नहीं लेंगे। आप उन डोंट यूज़ सेक्सुअल बिहेवियर इन अ वे दैट हार्म्स। ऑलमोस्ट सारे ही रिलीजन्स में इस पे सख्ती से बैन है, बुद्धिज़्म में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, हिंदुइज़्म में, कि आपका ये सेक्सुअल बिहेवियर आपके कंट्रोल में हो, आप जानवरों की तरह बिहेव नहीं करेंगे। और दूसरा, इसकी लिमिट्स हों, इसके तो लॉज भी मौजूद हैं और उस लॉ पे आप पाबंद हों। डोंट इंगेज इन हार्श, फॉल्स और आइडल स्पीच, खाम खा की गॉसिप, खाम खा से बोलना, गलत बोलना और हार्श वर्डिंग यूज़ करना, ये सब जो हैं उनसे साइड पे रहें, उनमें अपने आप को इंगेज ना करें। डोंट यूज़ इंटॉक्सिकेंट्स, इंटॉक्सिकेंट्स को अपनी लाइफ से निकाल दें। स्टेप 5, स्टेप 5 क्या है? वाइज लाइवलीहुड। वाइज लाइवलीहुड क्या होगी? इंगेज इन मॉरल वर्क, मॉरल वर्क को अपने ऊपर अडॉप्ट करें और उसमें फ्लोरिश करें। डोंट हार्म टू अदर्स, डू नॉट हार्म टू योर सेल्फ, दूसरों का भी ख्याल करना है और अपना भी करना है, अपनी भी केयर करें। आप भी इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी वजह से आपका सर्वाइवल है और दूसरों को बेनिफिट्स हैं, इसलिए आपने सेल्फ केयर भी करनी है और दूसरों की भी केयर करनी है। एंड डोंट वर्क इन्वॉल्विंग गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से अवॉइड करना है। डोंट वर्क इन्वॉल्विंग prostitution, don't work involving intoxicants, don't work involving arms, and don't work involving killing, stealing or lying। इन सारी चीज़ों को जब आप छोड़ देते हैं, आप किसी की बैकबाइटिंग नहीं करते, आप खाम खा से गॉसिप नहीं करते, गलत चीज़ों को फैलाते नहीं हैं,
अफवाहें नहीं क्रिएट करते और पॉलिटिकली या सोशली और ख़ुद से चीज़ें क्रिएट नहीं करते, दूसरों के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्विंग आर्म्स मीन दूसरों के लाइफ के अंदर उनके इनर सर्कल में आप दाखिल नहीं हो। इसी तरह स्टीलिंग, किलिंग और लाइंग, इन सब से आप अवॉइड करेंगे तो आप लाइवलीहुड की तरफ आएंगे। स्टेप 6 है, स्टेप 6 ऑन द एट फोल्ड पाथ, वाइज एफर्ट। वाइज एफर्ट क्या होगी? अवॉइड दैट विच विल लीड टू सफरिंग। ऐसी चीज़ों से गुरेज करें जिससे सफरिंग पैदा होती है। ठीक है, कुछ सफरिंग तो ऐसी हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, वो पैदा होनी हैं, लेकिन कुछ सफरिंग्स ऐसी हैं जो कि आपके अवॉइड करने से दूर की जा सकती हैं। मसलन आप पॉइजनस फूड ना खाएं, हार्मफुल फूड ना खाएं। अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपको मना है उनसे अवॉइड करें, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। एक कॉमन एग्जांपल ये है। तो इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन आप मार पिटाई नहीं करें, आप नहीं करेंगे तो दूसरा भी आपको नहीं मारेगा, आपकी सफरिंग पैदा नहीं होगी। इनकरेज दैट विच विल लीड टू हैप्पीनेस। ऐसी चीज़ों को करें जो कि खुशी की तरफ लेके जाती हैं, हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती हैं। व्हेन ट्रबलसम थॉट्स कम अप, इग्नोर दैम। जब इस तरह के कोई ख्याल आपके माइंड में आए जिनसे ट्रबल पैदा होती है तो उसको इग्नोर करें। इट दैट डज नॉट वर्क, ऑब्जर्व देम अराइज, ऑब्जर्व द फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस एंड देन ऑब्जर्व व्हेन इट फेड अवे। मसलन आपको कोई किसी से नफ़रत हुई है, उसकी कोई चीज़ बुरी लगी है, उसका एक्शन बुरा लगा है, तो पहली बात यह है कि आप उसके ऊपर उसको इग्नोर करें। अगर स्टिल आप इग्नोर नहीं कर पाते और वो आपके माइंड में रहती है, तो फिर आप वेट करें। वेट करें, उसको वक़्त दें ताकि वो फ़ीलिंग आपके अंदर से, वो जो नेगेटिव फ़ीलिंग है वो ख़त्म हो जाए। वक़्त के साथ ये चीज़ें मद्धम पड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसको आप इग्नोर करना सीखें, उसको उसके ऊपर ऑब्ज़र्व ना करें, उसको बार-बार रिकॉल ना करें, ताकि वो आहिस्ता-आहिस्ता फ़ेड हो जाए आपके माइंड से। और चेंज योर फोकस टू होलसम थॉट्स, या फिर ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस करें जो कि गुड हैं, जो कि अच्छी हैं, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करती हैं। अगर उसी किसी शख्स से आ गया है मसला, किसी इंसान, तो उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी होंगी नेगेटिव के साथ, तो उसको फोकस करें। और अगर इन्वायरमेंट के साथ आ गया है तो इन्वायरमेंट के अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव से अवॉइड करें, वो एरिया छोड़ दें और पॉजिटिव में आ जाएं। Practice loving kindness, meditation, focus on the outcome of activities you know will harm you or others. Meditate on the unattractive parts of something or someone you lust over. Focus on something simple like your breath. ऐसी चीज़ों पे फोकस करें जो कि इंतहाई सिंपल हैं, और जिस तरह आपकी सांस का आना जाना इंतहाई सिंपल है, इसी तरह उन चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेशंस में से निकालें और सिंप्लिसिटी की तरफ आएँ, काइंडनेस को फ़ोकस करें, मेडिटेशन के ऊपर फ़ोकस करें, और ऐसी एक्टिविटीज़ को जो आपको हार्म देती हैं, नुकसान देती हैं, दूसरों को देती हैं और नेगेटिविटी पैदा करती हैं, सफरिंग्स पैदा करती हैं, उनसे अवॉइड करें। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, स्टेप 7, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या चीज़ है कि आप बी प्रेजेंट एवरी मोमेंट, हर एक लम्हे में आप प्रेजेंट में मौजूद रहें। अगर आप अपने माजी को रिकॉल करते रहेंगे तो माजी में बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होंगे जो सफरिंग्स को पैदा कर रहे होंगे। और अगर आप फ्यूचर के ऊपर फोकस करेंगे तो फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ओवर थिंकिंग और ओवर असेसमेंट और उन चीज़ों से आप डिस्टर्ब होंगे, आपकी वर्किंग ख़राब होगी, आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में आएंगे। तो इसलिए बुद्धिज़्म फोकस करता है कि आप सिर्फ प्रेजेंट में अलाइव रहें, मौजूदा को इंजॉय करें, मौजूदा में मौजूद रहें। द 5 हिंड्रेंसेस, कौन सी 5 हिंड्रेंसेस हैं जिनकी वजह से ये जो है माइंडफुलनेस वो डैमेज होती है? विल, 3 विल, एंगर, हेटर्ड, बिटरनेस, डिज़ायर, greed, wanting, craving, sloth, slow mind, torpor, sleeping, dullness, restlessness, worries, agitation,
क्राउडेड थॉट्स, डाउट्स, ये सब जो हैं वो आपकी हिंड्रेंसेस हैं जो आपके माइंड को पॉजिटिव नहीं रहने देती, माइंडफुलनेस में हेल्प आउट नहीं करती। थ्री विल क्या है? डिज़ायर, स्लॉथ, टॉर्पर एंड रेस्टलेसनेस एंड डाउट्स। ये बेसिक विल्स हैं जो हर एक इंसान के अंदर पाई जाती हैं। इनको रिमूव करने का क्या तरीका होगा, एंटीडॉट क्या होगा जिससे कि हिंड्रेंसेस ख़त्म हो जाएं? सबसे पहले है लविंग काइंडनेस, गिव दैट पर्सन अ गिफ्ट। जिसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं या जिसको आप प्रॉब्लम आपको हो रही है और उसको भी हो रही है, तो उसको गिफ्ट्स दें। गिफ्ट देने से आपके दोनों के दरमियान में मामलात काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। थिंक अबाउट consequences or ugly parts walk, look at light up your determination। आप अपनी डिटर्मिनेशन को और ज़्यादा बूस्ट करें और बाकी चीज़ों को लेट डाउन करें। फोकस ऑन ब्रीथ, फोकस ऑन द थॉट्स। टॉक टू समवन एल्स हु प्रैक्टिसेस। जो और लोग इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे डिस्कस करें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह की सेटिस्फेक्शंस आती हैं, किस तरह से वो गो थ्रू होते हैं। स्टेप 8 है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? बी प्रेजेंट विद ऑल दैट इज ऑल एट द टाइम। जो कुछ अभी मौजूद है, आपके साथ चल रहा है, मेंटली, फिजिकली, ऑफिस में, घर में, कोलीग्स में, आउटर वर्ल्ड में, इनर वर्ल्ड में, उस सब में प्रेजेंट में आप अपने आप को उस टाइम के अंदर रखें, उस टाइम से आउट ना होने दें। ये कंसंट्रेशन है। There are the 10 fetters. In Eightfold Path, there are 10 fetters. What is fetter? क्या चीज़ है? फेटर चेन को कहते हैं, जो कि यूजुअली स्लेव्स के लिए यूज़ होती थी, पाँव में बांधने के लिए। और बुद्धिज़्म में फेटर को सिंबॉलिकली यूज़ किया गया है। कौन से 10 फेटर्स हैं? नंबर 1 है पर्सनैलिटी, दूसरा है डाउट, और तीसरा अटैचमेंट टू रिचुअल, फिर डिज़ायर, फिर थ्री विल्स जो आपने पीछे पढ़ी हैं, डिज़ायर टू गो बियॉन्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड डिज़ायर टू बी बियॉन्ड अ मटीरियल फॉर्म, फिर है कॉन्सीट, रेस्टलेसनेस एंड इग्नोरेंस इज नॉट डायरेक्टली रियलाइजिंग द फोर नोबल ट्रूथ्स। ये 10 फैक्टर्स हैं जो बुद्धिज़्म में डिफाइन हुए हैं। अब इन फैक्टर्स में से वो कहते हैं कि 4 स्टेजेस इनलाइटमेंट की क्या है। इनलाइटमेंट मीन्स आपकी डिवाइन क्वालिटी है, जो कि इन ह्यूमन नेचर के अंदर या उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जितनी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के बाद जो स्टेज आती है वो इनलाइटमेंट की स्टेज कहलाती है। उसमें डिस्ट्रॉय एनी ऑफ फर्स्ट 3 फैटर्स। वो कहते हैं कि जो फैटर की लिस्ट आपने आपको दी है उसमें से पहले 3 जो हैं उनको आप ख़त्म कर दें, यानी अपनी शख्सियत को प्रोमिनेंट करना, और सेकंड वन और थर्ड वन है उसको ख़त्म कर दें आप। फिर है वीकेंड डिज़ायर और इल विल। अपने डिज़ायर्स को बहुत रिड्यूस कर दें। कंप्लीट एरिडिक्शन ऑफ डिज़ायर और इल विल, डिस्ट्रॉय एनी ऑफ लास्ट वाली जो 2-3 बताई गई हैं उनमें से कोई भी ख़त्म कर लें। फिर है 4 स्टेजेस ऑफ एनलाइटमेंट, 5 फेटर्स फ्रूशन ऑफ। सबसे पहले ये उसकी है कि आप अभी पिछली स्लाइड में आपने पहले वाली पढ़ी है, उसके बाद ये है कि आप उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन सी 4 जो हैं वो सबसे ज़्यादा तंग करने वाली हैं, और उनको ख़त्म करते हैं तो एनलाइटमेंट की स्टेज में आप एंटर होते हैं। सबसे पहले 4 जो डिस्कस हुए हैं, फर्स्ट है स्टेट, when you destroy all 3 first fetters fruition of, पहली 3 को ख़त्म करने से। और when you weaken both desire and ill will fruition, फिर आप सेकंड स्टेट को गेन कर लेते हैं। फिर थर्ड स्टेट को गेन करते हैं when you completely
एरिडिकेट बोथ डिज़ायर एंड इल विल फ्रूशन। फोर्थ स्टेट में आके आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑल ऑफ द लास्ट 5 फैक्टर्स। तमाम पे आपको कंट्रोल हासिल हो जाता है और आप उनको ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद है 7 थिंग्स जो कि इनलाइटमेंट के फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि आप हाउ यू नो इट्स वर्किंग, कि आपने देखना है कि इनलाइटमेंट मेरे अंदर आ रही है या नहीं और ये किस तरह से वर्क कर रही है या नहीं। तो अगर ये 7 जो फैक्टर्स हैं इन पे आपको कंट्रोल हासिल हो गया है, आपने इन्हें कंट्रोल कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, तो फिर आप इनलाइटमेंट की स्टेट्स में एंटर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। मसलन आपने एनर्जी जो है वो कंट्रोल कर ली, आपने जॉय को कंट्रोल कर लिया, ट्रंक्विटी को, कंसंट्रेशन आपने अपनी कंट्रोल कर ली, उसको फिक्स कर लिया, इक्वेनिमिटी को, माइंडफुलनेस को और क्यूरियोसिटी को। ये सारी चीज़ें अगर आपसे मैनेजेबल हैं और आप इनको, जैसा कि पिछली स्लाइड्स में उन्होंने बताया है, इनको कंट्रोल कर लिया है, तो फिर आप इनलाइटमेंट के स्टेजेस के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये फैक्टर्स हैं जिनसे आप कंट्रोल करने से उसमें एंटर हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।